Hello students and welcome back again in your geography class. Students, as you know that we have started the chapter volcanoes, and in this chapter we have completed few topics that are given in your book, like the causes of volcanic eruption. In the first video of the volcano we understood about the causes. What are the causes, or we can say that what are the reasons behind the eruption of the volcano. Then after that we understood about the structure of the volcano. We understood about the structure of the volcano. Then after that we understood about the types of volcanoes. Now students, in this video session we are going to understand about the effects of volcano. Now in the effects of volcano we are going to understand about the two effects, that are the constructive effect and the destructive effect. Now students, let us understand about the effects of volcanoes. According to your book, students, now you are clearly able to see in your book. Now this point is given, effects of volcano. Now the volcanic eruption have both constructive and destructive effects. That I have already told you that. Now the effects of volcano, both side. Now for the eruption purpose, now if we are going to see, so now you are clearly able to see the written line here, the constructive and the destructive effects. Now we are going to another point, and that is the constructive point. First we are going to understand about the constructive effect. Now volcanic eruptions are the sudden force, also termed as a constructive force, which have number of constructive effects on the surface of the earth. The main constructive effects of the volcanoes are the following, like the landforms. Now the landforms, then the volcanic plateau and the volcanic mountains. Now the volcanic plains. So first we are going to understand about the constructive effects. So now you see that the landform. Numerous types of landforms are created due to the cooling and the solidification of magma below the earth's surface and lava on the earth's surface. The landforms created on the earth's surface are called the extrusive landforms. Now these include the volcanic plateaus, volcanic mountains and the volcanic plains. Okay students, now we are going to understand about the constructive effects of the volcanic eruption. So when we started the chapter, I have already told you that when the volcanic eruption, so now you see that the lots of magma that's come out on the earth's surface, it is known as the lava. And when the lava become cooling and settle down, so now it takes the form of igneous रॉक्स. तो ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक बार इसको क्लियरली समझ लेते हैं. जब हम लोगों ने देखा था और पीछे चैप्टर में पढ़ा भी कि जब वॉल्केनिक एरप्शन होता है तो हमारे अर्थ के अंदर से बहुत सारा मैग्मा बाहर की तरफ आता है. वही मैग्मा जब बाहर आता है तो उसे हम लोग लावा बोलते हैं, और वो लावा जब कूल होता है और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वो इग्नियस रॉक के फॉर्म में आता है. तो उसी से जो लैंड फॉर्म्स हम देख रहे हैं, किस तरीके के लैंड फॉर्म्स हमारे अर्थ सरफेस पे फॉर्म हो रहे हैं. तो एक तो हमने बात की वॉल्केनिक प्लेट्यू की, एक हमने बात की वॉल्केनिक प्लेन्स की, और एक बात की हम लोगों ने वॉल्केनिक माउंटेन्स की. तो ये लैंड फॉर्म्स जो हैं हमें अपने अर्थ पे देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट जो पहला हम लोगों को समझना है वो है वॉल्केनिक प्लेट्यू. These are derived lava which flows over the volcanic eruption. The plateau of peninsular India, especially the northwestern Deccan, is an example of lava plateau. Other examples of the South African plateau, Colombian plateau and the Ethiopian plateau. Okay students, अब हम लोग volcanic plateau के बारे में समझ लेते हैं. जैसे एक एग्जाम्पल इसमें दिया गया है कि जो वॉल्केनिक प्लेट्यू है वो हमारे इंडिया में भी पाया जाता है, जिसको हम लोग डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं. अगर हम लोग इसके हिस्ट्री के बारे में पता करें कि इसका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है, तो एक्चुअली द लैंड दैट इज बिलोंगिंग फ्रॉम द गोंडवाना लैंड, वो जो लैंड है जहां पे ये प्लेट्यू पाया जाता है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है.
और जब बहुत हजारों साल पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्केनिक एरप्शन होते थे, तो उसी वॉल्केनिक एरप्शन की वजह से जो लावा बहुत सारा बाहर निकल के आया, तो वहां पे उसने इग्नियस और एक्सट्रेसिव स्टोन्स की मदद से वहां पे इस प्लेट्यू का फॉर्मेशन किया। इसीलिए हम देखते हैं कि पर्टिकुलर उस डेक्कन प्लेट्यू के अंदर में हम लोगों को ब्लैक सॉइल भी देखने को मिलती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। नेक्स्ट पॉइंट, now the volcanic mountains, these mountains are built from the material ejected from the fissures in the earth crust. Volcanic mountains are the most diverse because there are not great differences in the volcanic eruptions as well as the materials they throw up. Volcanic mountains like the Mauna Loa in Hawaii rise the 9 km from the ocean's floor, and volcanic mountains are common in the circum-Pacific belts and the include such as the volcanic peak, the Mount Fuji in Japan, the Mount Mayon in Philippines, and the Mount Merapi, Sumatra, Mount Agung, Bali, and the Mount Cotopaxi, Ecuador. Okay, so now few of the examples are given of the volcanic mountains. So again I am get back on the theory how the volcanic mountains are formed. तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो वॉल्केनो होता है, जब वो फोर्सली एरप्ट करता है, तो दैट इज नाउ क्रिएट द लावा स्टार्ट टू इजेक्टेड आउटसाइड ऑन द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ द कोन शेप। वो कोन शेप में इरप्शन उसका होना शुरू हो जाता है, और फिर लावा का बार बार डिपोजिशन होना, एक ही प्लेस पे उसका कूलिंग होना, सेटल डाउन होना, तो कहीं ना कहीं वो एक कोन शेप में बनाना चले जाता है, जिससे कि हम लोग देखते हैं एक माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाता है। कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे माउंट फुजी जापान का है, और बहुत सारे माउंटेन्स दिए गए हैं नाम। तो जब बच्चों आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें, इसके एग्जांपल्स पता चल जाएंगे, और इनको याद रखिएगा, कभी कभी ये 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। Now next, the volcanic plains. These plains are vast and smooth, formed by the extensive volcanic flooding from the volcanic centers. The western Victorian plains in Victoria, Australia are the finest example of volcanic plains. These plains were formed by volcanoes over the last 6 million years, with most recent eruptions being at Mount Napier 7,200 years ago. Over 400 volcanic sites have been found in this region. Okay, अब वॉल्केनिक प्लेन्स की बात करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था बेटा, सबसे पहले हम लोगों ने वॉल्केनिक प्लेट्यू के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद से वॉल्केनिक माउंटेन्स के बारे में पढ़ा। उसी तरीके से वॉल्केनिक एरप्शन की वजह से वॉल्केनिक प्लेन्स का भी फॉर्म होता है, जो उनकी वेदरिंग होती है, जो इरोजन होता है, जो डिपोजिशन होता है, जब वो एक्सपोज, जब लावा हमारे अर्थ सरफेस पे एक्सपोज होता है, कूल होता है, सेटल डाउन होता है, फिर उसके बाद वो रॉक के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर उस रॉक की वेदरिंग होती है, तो उससे क्या होता है, इन प्लेन्स का भी निर्माण होना शुरू हो जाता है। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप लोग इनको पढ़ें और उन एग्जांपल्स को लर्न करें। नेक्स्ट, नाउ वी आर कमिंग ऑन द कैल्डेरा लेक। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लेक फॉर्मेशन की, यानी कैल्डेरा लेक के बारे में बात करते हैं। During repeated eruptions, the summit of volcanic may be blow up in its places. A large depression called the caldera lake is formed. These are generally formed when the magma chamber is no longer able to emit sufficient magma on the result of the collapse of the cone, and partially the holy and the depression eventually gets filled with the water and forms a lake. Of examples, the Crater Lake in the USA, Caldera Lake is about the 10 km wide in the deepest lake in the USA. Okay, अब उसके बाद हम लोग कैल्डेरा लेक के बारे में जानते हैं। जो लेक हमारी क्या होती है, वॉल्केनिक के वजह से फॉर्म होती है। जैसे अभी हम लोगों ने बात की वॉल्केनिक एरप्शन की, कभी कभी क्या होता है बेटा कि कोई वॉल्केनो में मैग्मा जो चेंबर होता है, उसमें इतना मैग्मा नहीं होता है कि ढेर सारा मैग्मा बाहर आया और उस कोन शेप को एकदम मजबूती से बाइंड अप करे। लेकिन फिर बाद में हमें देखने को क्या मिलता है कि वो कोन शेप तो इरोज हो गया, क्योंकि उसके बाद से वहां पे इरप्शन हुआ नहीं, और वहां पे एक गहरा गड्ढा बनता चला गया, और उस गहरे गड्ढे में जब धीरे 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 वाटर कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, तो वो एक लेक का फॉर्मेशन करता है।
जब इस तरीके की लेक का फॉर्मेशन होता है तो इसे हम लोग कैल्डेरा लेक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग हॉट स्प्रिंग की बात कर रहे हैं उसे देख लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ मैग्मा इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ हीट अप्स द ग्राउंड वाटर पर्टिकुलरली अराउंड द मैग्मा चेम्बर। When the water turns into the steam gushes up the surface, hot springs also known as the thermal springs। अब hot springs क्या है बेटा, एक बार हम लोग देख लेते हैं। कभी कभी आपने कई जगह पे सुना होगा कि जमीन के अंदर से गर्म पानी निकल रहा है। हम लोग इसको तो कभी कभी दैवीय चमत्कार भी मान लेते हैं कि ये तो भाई भगवान की वजह से ऐसा नहीं है बेटा। जैसे अभी हम लोगों ने अब काफी कुछ अर्थ के बारे में समझ लिया है तो हमें एक चीज और ये क्लियर हो गई कि जैसे जैसे हम अर्थ के नीचे जाते हैं वहां का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है तो वहां पे हमने देखा कि चीजें मेल्ट होना भी शुरू हो जाती हैं। तो जैसे जैसे ये मैग्मा ऊपर आता है तो हमने देखा है कि जो ग्राउंड वाटर सोर्सेज हमारे जो जमीन के नीचे से पानी मिलते हैं तो इन मैग्मा चेंबर की वजह से, इस मैग्मा की वजह से वो क्या होते हैं, पानी अंदर गर्म हो जाते हैं और वो प्रेशर की वजह से स्प्रिंग की तरह वापस वो बाहर की तरफ आते हैं। तो वही गर्म पानी हमारे पास बाहर आता है। तो सिंपल थ्योरी है, क्योंकि जमीन के नीचे टेम्परेचर हमारा क्या है, गर्म है, और उसमें जो वाटर, जो अंडरग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी है वो मैग्मा चेंबर या मैग्मा के कांटेक्ट में आ रहा है, जिसकी वजह से वो पानी हीट कर रहा है, प्रेशर बन रहा है और वो स्प्रिंग की तरह बाहर आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, द गीजर्स। A geyser is a fountain of the hot water steam and escape when the underground water comes into the contact with the hot volcanic rocks. For example, the old faithful geysers in the Yellowstone National Park in the Wyoming in the USA during an eruption, its water temperature vent has been measured 95.6 degrees Celsius. अब हम लोग बात करते हैं गीजर की। जैसे बेटा हम लोग देखते होंगे अपने बाथरूम में गीजर का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली व्हाट इज द रोल ऑफ द गीजर व्हेन वी आर यूजिंग द इन आवर बाथरूम्स? तो नाउ द मेन फंक्शन ऑफ द गीजर इज द टू जस्ट हॉट द वाटर, पानी को गर्म करने का काम होता है। तो इसी तरीके से जो नेचुरल गीजर्स हैं जो जमीन के नीचे से आ रहे हैं तो वो हमारे नेचुरल गीजर्स होते हैं जहां से हमें गर्म पानी मिलता है। जैसे अभी इस पैराग्राफ में साफ लिखा हुआ है, व्हेन द वाटर अंडरग्राउंड वाटर कांटेक्ट विद द हॉट स्टोन्स। जब ये पानी, अंडरग्राउंड वाटर पानी जब जमीन के नीचे गर्म पत्थरों के संपर्क में आता है, कांटेक्ट में आता है, तो ये गर्म हो जाता है और फिर वही प्रेशर क्रिएट होता है और ये बाहर की तरफ आते हैं। फिर अदर कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स हैं, इनको एक बार आप लोग देख लेंगे। फिर उसके बाद से हम लोग डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स पे आते हैं कि किस तरीके से वॉल्केनिक एरप्शन नुकसान पहुंचाता। अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से वो चीजों को बना रहा था, अब वो किस तरीके से चीजों को नुकसान पहुंचा रहा है। Some of the destructive effects. Now, number one, when the volcanic erupt, they destroy the life property. The hot lava together with ash and dust destroy not only human beings but also animals as well as plant life. Agricultural field covered with the layers of volcanic ash and dust, making them unsuitable and the uncultivation. Now huge clouds cover, okay, volcanics poisonous pollute, volcanic islands follow high tsunami waves, floods area, destroy crops. Okay, अब हम लोग डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि किस तरीके से। एक तो पहली चीज है कि जब भी वॉल्केनो एरप्ट करेगा और जो उस एरिया के लोग रहते होंगे उनकी प्रॉपर्टी लॉस होगी, उनकी लाइफ लॉस होगी, जो उनके द्वारा मकान बनाए गए हैं वो लॉस होंगे, जो अगल बगल के वेजिटेशन है, जो ग्रीन ट्रीज हैं, उनको नुकसान पहुंचेगा। दूसरा, जब वॉल्केनिक एरप्शन होता है तो बहुत सारा ऐश भी निकलता है जिसको हम लोग राख बोलते हैं। वो एग्रीकल्चरल फील्ड्स को कवर कर लेती हैं। जब वो एग्रीकल्चरल फील्ड्स को कवर कर लेती हैं तो वो अनफर्टाइल हो जाती हैं, फिर उनमें खेती नहीं हो पाती। तीसरा क्या, बहुत सारा स्मोक निकलने की वजह से एनवायरमेंट पॉल्यूटेड हो जाता है, जो पॉइजनस गैस आ जाती है जिससे भी लोगों को काफी परेशानी होती है। फिर उसके बाद से हम लोग देखते हैं जैसे अगर किसी आइलैंड पे इस तरीके की चीजें हो रही हैं
तो वो वहां पर सुनामी आने का खतरा हो जाता है, फ्लड आने का खतरा हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जो वॉल्केनो के डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स हैं। कभी कभी 1 और 2 पॉइंट्स ये बोर्ड के क्वेश्चन में 9th में आपसे पूछ लेगा, राइट एनी 1 और 2 पॉइंट्स अबाउट द कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ द वॉल्केनो एंड द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ द वॉल्केनो। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट बेल्ट्स बेटा दी गई हैं कि जो ये बेल्ट्स हैं, जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि जो पैसिफिक बेल्ट है ऑफ द वर्ल्ड, ये किस किस बेल्ट में ये पाया जाता है। तो सरकम पैसिफिक बेल्ट एंड द मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस चैप्टर एक्सप्लेनेशन कंप्लीटेड and all of you see the 3 videos relative with this explanation of the chapter, and you watch the video carefully and read the chapter. Thank you.